Hello students, good morning. How are you all? Fine. Okay, so students, today we are going to start our new lesson, that is lesson number 2, I want. Okay, so take out page number 29 in your Marigold textbook. Okay, yes, see what is the name of the chapter? I want. Okay, yes, so we will read line wise. Okay, and I am going to explain you what is written. So first line it is, I want to be big, says little monkey. I want to be strong. So जो little monkey है वो क्या बोल रहा है? I want to be big and I want to be strong. Means जो ये little monkey है, you can see the picture in your book, right? As I have shown you in the video, right? यस जो ये तुम लोग पिक्चर देख सकते हो कि जो लिटिल मंकी है वो ट्री पे चढ़ा हुआ है, राइट? ही इज ऑन द ट्री, राइट? सो ये जो लिटिल मंकी है उसको क्या बनना है? ही वांटेड टू बिकम बिग एंड वांट टू बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट सी व्हाट इज इन द सेकेंड पैराग्राफ. अ वाइज वुमन हियर्स हिम टेक दिस मैजिक वैंड. अब उसके बाद तुम लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, यू कैन सी हियर अ वुमन इज देयर. ओके, मंकी और एक वुमन का पिक्चर दिख रहा है. यस, सो व्हाट डज द वुमन से टू द मंकी? वो क्या बोल रही है मंकी को? दैट टेक दिस मैजिक वैंड. मैजिक वैंड मीन्स, मैजिक वैंड का मतलब होता है ये जो स्टिक है, वुमेन के हाथ में जो स्टिक है, लकड़ी है, उसको हम बोलेंगे मैजिक वैंड. ओके, yes. Now next see what is given. She says and all your wishes come true. Magic wand means ये जो लकड़ी है उसको लेकर ये जो monkey है, little monkey, उसकी जो भी wishes होगी वो उसको true कर सकता है, पूरी कर सकता है, right? Yes. Now see what is in the next paragraph. A giraffe comes by. He stretches his long neck. Then after you can see the picture of a giraffe, right? He comes by, stretches his long neck, means जो उसकी long neck है उसको stretch कर रहा है. तो long neck किसकी है? Giraffe की, right? Yes. Now see what is next written. He eats the sweet leaves at the top of the trees. So top of the trees पे क्या है? जो पत्ते हैं, leaves हैं, right? That leaves are very sweet. So that's why the giraffe eats all the leaves. Now see on the next paragraph what is given. I want a long neck, says little monkey. Pop. तो जो little monkey है वो क्या बनना चाहता है? He wanted a long neck. उसको long neck चाहिए, किसकी तरह? जिराफ की तरह, right? He wanted a very long neck, जैसे जिराफ की तरह है. You can see in the picture. Okay, page 29 पे जो नीचे का जो picture है वो तुम लोग देख सकते हो कि जो neck है वो बहुत long है, right? Yes. So what is in the next one? His neck grows long just like the giraffe. तो जो monkey है जब वो magic wand हाथ में लेता है और ऐसा सोचता है, when he wishes, जब वो wish करता है कि मुझे long neck चाहिए जिराफ की तरह, तो उसका जो neck है वो long हो जाता है. तुमको picture दिख रहा है? Yes, जो second picture है page 29 पे वो वाला देखो. Now next see क्या दिया हुआ है. Little monkey is happy. An elephant comes down to the river. जब ये जो little monkey है उसकी जो long neck जो है वो long हो जाती है तो वो बहुत happy हो जाता है. He becomes very happy. Then after elephant comes. Where elephant comes? Elephant कहाँ पे आता है? Elephant comes to the river. Now अब देखो last paragraph क्या है? He fills his trunk with water. He blows it all over himself. I want to do that too, says little monkey. Bang. अब जो elephant है, what does the elephant do? वो क्या करता है elephant? Elephant अपनी trunk means सूंड. जो elephant का nose होता है, सूंड होती है, उसको हम बोलेंगे trunk. तो उसकी trunk में वो क्या करता है? Water fill करता है. उसके बाद क्या करता है? वो जो water होता है उसको अपने ऊपर पूरा पानी अपने ऊपर डाल देता है. Then what does the elephant do? I want to do that, says little monkey too. Then after जब वो elephant को देखता है, that elephant blows water on himself. Then what does the monkey say?
Monkey says that I also want a long trunk like the elephant, and I also want to do like him as he do the water blows over the himself. Okay, तो first page तक तुमको समझ में आया? Clear up till that, children? Okay. Okay, students, now see, turn the page on the page 3030. Yes. Okay, so see on the first line what is given to you. Just like that he grows a trunk. Then after जो monkey है उसने क्या किया, जैसे elephant की जो trunk होती है वैसे ही उसने मैजिक वेंट से अपने नोज को बिग कर दिया, लॉन्ग कर दिया. राइट, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द पेज 30. राइट, यस, ही इज वेरी हैप्पी, दिस इज फन, ही सेज. तो जो मंकी है वो क्या बोल रहा है, व्हाट डज ही सेज? ही सेज दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड दिस मैजिक वैंड इज वेरी fun to use. Right, okay, now see on the next line. Next little monkey says a zebra, I want strip like those. He says whiz. उसके बाद जो मंकी है वो किसको देखता है, he sees a zebra. Right, तो वो क्या सोचता है, बाद में उसकी क्या विश होती है कि उसको किसकी तरह बनना है, he want to become like a zebra. Right, zebra you have seen in zoo and everywhere. Right, zebra has white and black strips on its body. तो जो मंकी है उसको भी सेम एज जेब्रा की तरह वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स चाहिए थी. राइट, ओके, नाउ सी व्हाट इज नेक्स्ट. लिटिल मंकी हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द जेब्रा. जब उसने विश किया कि उसको जेब्रा की तरह स्ट्रिप्स चाहिए, जब उसके हाथ में मैजिक वैन थी, देन क्या हुआ था, उसकी बॉडी पे पूरे जेब्रा के जैसे स्ट्रिप्स आ गई थी. He is very very happy. He goes to the river to try out his new trunk. Then after वो कहाँ पे जाता है monkey? Monkey goes to the river. What does he do? He takes a water from the river in the trunk. वो अपनी new trunk के साथ water में जाता है. Then after what is the next written? See, he sees himself in the water. मदर ही क्राइज हेल्प अ मॉन्स्टर. देन आफ्टर जब वो वाटर में अपना फेस देखता है तो उसको क्या लगता है कि वो मॉन्स्टर है. मॉन्स्टर मीन्स जो क्रीचर होता है, जो लॉन्ग होता है, अगली होता है, फ्राइटनिंग मीन्स व्हेन इट इज़ जो डरावना होता है. राइट, यस, सो व्हेन जब वो अपने आप को रिवर में देखता है तो वो एकदम से डर जाता है और वो क्या करता है, ही स्टार्ट्स क्राइंग. एंड व्हाट डज ही सेज? मंकी सेज दैट मदर प्लीज हेल्प मी फ्रॉम अ मॉन्स्टर. नाउ नेक्स्ट सी व्हाट इज गिवन. दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर सेज हिज मदर, दैट्स यू. तो फिर उसकी मम्मा क्या बोलती है, हिज मदर सेज दैट विच यू आर सीइंग इन द वाटर, that is not a monster, that is you only. Now next what is given, see, you want a giraffe's neck, an elephant's trunk and a strip like zebra, don't you remember? तो उसकी मम्मा जो है वो मंकी को क्या पूछती है कि जो तुम्हारी विश थी कि तुमको जिराफ की तरह नेक, एलिफेंट की जैसे ट्रंक और जेब्रा के जैसे स्ट्रिप्स चाहिए, तुमने वो विश किया था, डोंट यू रिमेंबर दैट? लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज. देन आफ्टर वो लिटिल मंकी क्या करता है, ही स्टार्ट्स क्राइंग वेरी लाउडली. I look awful, he says. I want to be myself again. There is a pop, a bang and a whiz. Little monkey is himself again. He jumps for joy. Then after वो क्या विश करता है कि जैसे मैं पहले था, मंकी जैसे पहले था उसको वैसे ही अगेन बनना था. सो अगेन उसने जब विश किया तब उसके हाथ में क्या थी, वो मैजिक वैन, मतलब जो स्टिक उसके हाथ में थी मैजिक वाली, उसकी वजह से वो वापस से अपना जैसे उसका फेस पहले था वैसे की वैसे उसकी बॉडी पूरी हो गई. देन आफ्टर व्हाट डज अ मंकी डू, ही जम्प्स एंड लाफ वेरी हैप्पीली. ओके चिल्ड्रन, सो क्लियर अप टिल पेज 30. Yes students, now see on the page 31, last page of your chapter.
Yes, so you can see in the picture, you have shown here the picture of a monkey. When जब वो zebra या फिर जिराफ के जैसे उसकी और एलिफेंट के जैसे उसकी ट्रंक और सब आ जाता है तो वो कैसे दिखने लगता है, एक मॉन्स्टर के जैसे. मॉन्स्टर मीन्स मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था कि एक क्रिएचर होता है जो एकदम अगली होता है और डरावना. फ्राइटनिंग मीन्स डरावना होता है. यस, तो उसकी तरह वो दिखने लगता है. तो वो लास्ट में क्या सोचता है, देखो पेज 31 पे पैराग्राफ क्या दिया हुआ है. सी, ही थ्रोज द मैजिक वैंड इनटू द रिवर. तो जब वो अपने आप को एज अ मॉन्स्टर देखता है तो व्हाट डज द मंकी थिंक. मंकी ने क्या किया कि जो मैजिक वैंड थी जिससे वो मैजिक कर सकता था, जो स्टिक थी, वो स्टिक उसने क्या की, रिवर में फेंक दी. देन आफ्टर वो क्या बोलता है, आई नेवर वॉन्ट्स टू बी एनी वन एल्स अगेन. तो मंकी क्या बोलता है कि अब मुझे किसी के भी जैसे नहीं बनना है, मैं जैसे हूँ आई एम वेरी फाइन, आई डोंट वॉन्ट टू बी एनी वन एल्स again. Okay students, so this was your story. Now we will study what is in the chapter in workbook and in the CW. Okay students, so did you like the story? Yes. Okay, so we have learned the story about the monkey. Yes. Okay, now we are moving further with the next exercise. See what you are going to learn now. अब हम लोग meanings पढ़ेंगे, synonym, then after MCQs and rhyming words and all. Okay, yes, so हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद मीनिंग्स, राइट. सो वेंड का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट दिया है WAND, वेंड, राइट. वेंड दिया है, तो वेंड का मीनिंग क्या होता है मैंने तुमको समझाया था जब लेसन एक्सप्लेन किया था. देन आई हैव टोल्ड यू कि जो मैजिक वेंड था उसका मतलब क्या होता है, अ थिन. थिन मतलब एकदम जो पतली, स्टिक मतलब लकड़ी होती है, राइट. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A then THIN, thin, and then STICK, stick. समझ में आया. वेंड मीन्स वो क्या था उसमें, जो मैजिक वेंड ले रहे हैं, राइट. जो मैजिक वेंड मंकी को मिली थी. तो अभी वेंड का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अ थिन स्टिक. थिन मतलब पतली और स्टिक मतलब जो लकड़ी होती है वो. समझ में आया. अब नेक्स्ट इज ट्रंक. So what is the meaning of trunk children? I have already explained you. Trunk क्या होता है, जो एलिफेंट की जो सूंड होती है उसको हम इंग्लिश में we say it as a trunk. Okay. So इसमें हम क्या लिखेंगे, ANN, elephants. एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होता है, ELEPHANTS. elephants. long, LONG, long. Then after nose, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को नोज होता है, राइट. वैसे ही ये जो एलिफेंट है उसको क्या है, उसको जो लॉन्ग नोज है मतलब जो उसकी सूंड है उसको हम क्या बोलते हैं, we say it as a trunk. Yes. अब देखो आगे क्या है, मॉन्स्टर. सो मॉन्स्टर मीन्स हमने पढ़ा था, मॉन्स्टर मीन्स क्या होता है, a creature that is large, ugly and frightening. मतलब एक ऐसा एनिमल या इंसेक्ट जो बहुत ही लार्ज है, अगली मीन्स जो दिखने में अच्छा नहीं है, और फ्राइटनिंग. फ्राइटनिंग मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही डरावना है. तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो कैसे लिखना है, ए क्रीचर. क्रीचर का स्पेलिंग क्या होता है, CREATURE, क्रीचर. देन आफ्टर that is ugly, frightening and very long. Okay, so that is long, ugly and frightening. Frightening का स्पेलिंग क्या होता है, FRIGHTENING, frightening. अगेन इसको रीड करो. Monster means a creature that is long. लॉन्ग मीन्स जो बहुत ही लंबा है. अगली मीन्स जो दिखने में बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं है, अच्छा नहीं है, दैट इज नोन एज अगली. एंड फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मीन्स जो डरावना होता है, राइट. सो समझ में आया मीनिंग्स तक कैसे करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट सिनोनिम वर्ड्स. अब सिनोनिम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमको वर्ड्स दिए हुए हैं उस वर्ड्स के लिए हमको दूसरा मीनिंग वर्ड लिखना है. तो ये जो दो वर्ड हम लिखेंगे दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे सिनोनिम्स. ओके, तो फर्स्ट क्या दिया है, वेंड. वेंड मतलब मैंने तुमको यहाँ पे समझाया था क्या होता है वेंड. वेंड मीन्स
स्टिक, तो स्टिक का स्पेलिंग क्या होता है? STICK, स्टिक। अब नेक्स्ट क्या है देखो, जॉय। जॉय मीन्स डिलाइट। जॉय का मतलब क्या होता है? जॉय के लिए हम क्या सिनोनिम यूज कर सकते हैं? डिलाइट। स्पेलिंग रीड करो, DELIGHT, डिलाइट। ओके, अगेन व्हेन, स्टिक, जॉय, डिलाइट। ओके, अब थर्ड नंबर देखो क्या है? जंप। तो जंप का क्या होता है सिनोनिम? हम लिख सकते हैं हॉप। तो हॉप का स्पेलिंग क्या होता है? HOP, हॉप। समझ में आया? क्लियर अप टिल दिस? ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू राइट इट इन योर CW, राइट? अब देखो वर्कबुक में पेज नंबर 25, दिस पेज यू हैव टू ओपन। हैव यू ओपन? दिस इज योर मैरीगोल्ड वर्कबुक, राइट? हाँ, अब यहाँ से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेसन 2 एंड 1। ओके, तो अब यहाँ से हम एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है? देखो फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे हेडिंग क्या है? राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स। मतलब यहाँ पे जो तुमको बॉक्स दिए हैं उसमें तुमको 4 ऑप्शन A, B, C या फिर D में से चूज करना है। जो करेक्ट है वो यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? यस, नाउ नेक्स्ट सी हाउ वी आर डूइंग। फर्स्ट इज द लिटिल मंकी वांट्स टू बी डैश। सो मंकी को क्या बनना था? व्हाट वांट टू बी मंकी? बी, मंकी वांटेड टू बी, देखो अब ऑप्शन क्या है? A, वाइज एंड बिग। वाइज और बिग बनना था उसको, या फिर दूसरा ऑप्शन है बिग एंड गुड, देन इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, और लास्ट ऑप्शन है गुड एंड स्ट्रॉन्ग। तो मंकी को क्या बनना था? उसको बनना था बिग एंड स्ट्रॉन्ग। मंकी को बिग और स्ट्रॉन्ग बनना था ना? यस, सो हमारा कौन सा करेक्ट वन है? सी वाला। तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे और जो स्पेस दिए उसमें पूरा आंसर लिखेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड वन, डैश हियर्स हिम। तो जो मंकी बोल रहा है तो कौन सुनता है उसको? देखो ऑप्शन क्या दिया है? हिज मदर, ए वाइज वुमेन, एन एलिफेंट या फिर जिराफ। कौन सुनता है? अ वाइज वुमेन, राइट? सो ए शुड बी कैपिटल, वाइज WIC एंड वुमेन, ठीक है? तो ये ऑप्शन कौन सा है? बी। बी इज राइट वन। अब देखो थर्ड नंबर, अ वाइज वुमेन गिव्स हिम अ डैश। तो जो वाइज वुमेन उसको देख रही थी, जिसने उसको सुना था, वो उसको क्या दे रही है? अब मंकी को व्हाट शी इज गिविंग? देखो अब क्या है? ऑप्शन ए मैजिक वैन, मैजिक स्टिक, मैजिक वर्ड या फिर मैजिक रूलर। तो उसको क्या मिला था? मैजिक वैन। हमारा ऑप्शन ए राइट है। मैजिक वैन क्या थी? वो एक लकड़ी थी जिससे मैजिक हो सकता था। ओके, जैसा हमको बनना है वैसा हम बन सकते थे, इसलिए उसको मैजिक वैन बोला गया है। ओके, नाउ सी फोर्थ नंबर, द डैश स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक। अब लॉन्ग मीन्स जिसका लंबा सा बहुत लॉन्ग नेक होता है। नेक मीन्स ये, ठीक है? तो लॉन्ग नेक किसका होता है? Whose it is? It is of zebra, giraffe, elephant या little monkey. लॉन्ग नेक किसका होता है? जिराफ का, है ना? जिराफ देखा है सबने? यस नो? हाँ, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? बी वाला। ओके, अब देखो क्या है? The elephant fills his dash with water. तो एलिफेंट वाटर किसके में भरता है? किसमें वो फील कर रहा है? फिलिंग इन ट्रंक। ट्रंक मीन्स जो उसकी सूंड थी, राइट? उसका लंबा सा जो नोज था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर अप टिल 5 नंबर? यस, नाउ सी व्हाट इज गिवन इन द 6th नंबर। देखो क्या लिखा है? द ज़ेब्रा हैज डैश ऑन हिज बॉडी। तो ज़ेब्रा की बॉडी पे क्या था? हमने लेसन में पढ़ा है, राइट? देखो ऑप्शन ए डॉट्स, स्पॉट्स, डिजाइन या फिर स्ट्रिप्स। ज़ेब्रा की बॉडी पे क्या था? ज़ेब्रा की बॉडी पे थे स्ट्रिप्स, जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर की जो थे उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिप्स, STRIPS, स्ट्रिप्स। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। अब देखो 7 लास्ट नंबर है, द लिटिल मंकी सीज अ डैश इन द रिवर। जो मंकी था लिटिल, वो क्या देखता है रिवर में? रिवर में वो मॉन्स्टर देखता है, राइट? व्हाट इज सीज इन अ रिवर?
रिवर में उसको मॉन्स्टर दिखता है। सो ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस। नाउ नेक्स्ट सी, टर्न द पेज। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। सो फिल इन द ब्लैंक्स एज इट इज, जस्ट चूज द करेक्ट है, वैसे ही सेम फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो अब क्या है, द लिटिल मंकी वांट्स टू बी डैश। तो लिटिल जो मंकी था उसको क्या बनना था? ही वांटेड टू बिकम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, है ना, उसको बिग और स्ट्रॉन्ग बनना था। हमने यहाँ पे पढ़ा है चूज द करेक्ट में, और लेसन में भी यू हैव रीड राइट दैट ही वांटेड टू बिकम बिग एंड स्ट्रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट, अब देखो सेकंड क्या लिखा है, द जिराफ स्ट्रेचेस हिज डैश नेक। सो व्हाट डज जिराफ स्ट्रेचेस? हिज लॉन्ग नेक। तो लॉन्ग का स्पेलिंग क्या होता है? LONG, लॉन्ग। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, द एलिफेंट हैज अ डैश। तो एलिफेंट को क्या है? एलिफेंट हैज अ ट्रंक। ट्रंक मीन्स, चिल्ड्रन यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंक? यस, ट्रंक द मीनिंग क्या होता है ट्रंक का? ट्रंक का मीनिंग होता है जो एलिफेंट की जो सूंड होती है, नोज होता है लॉन्ग, उसको हम बोलेंगे ट्रंक। अब नेक्स्ट देखो, द ज़ेब्रा हैज डैश ऑन हिज बॉडी। तो ज़ेब्रा की बॉडी पे क्या था? हमने यहाँ पे पढ़ा है, ज़ेब्रा की बॉडी पे थे स्ट्रिप्स, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स वाज देयर। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट सी, द लिटिल मंकी सीज अ डैश इन द रिवर। तो मंकी ने रिवर में क्या देखा था? हमने यहाँ पे पढ़ा है, मंकी हैज सीन अ मॉन्स्टर। समझ में आया यहाँ तक? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट यहाँ पे, जो क्वेश्चन सही है उसके सामने ट्रू लिखेंगे, जो रॉन्ग है उसके सामने फॉल्स लिखेंगे। ओके, सी व्हाट इज फर्स्ट गिवन? द लिटिल मंकी वांट्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड बिग। तो लिटिल मंकी को बिग और स्ट्रॉन्ग बनना था। यस, ही वांटेड टू बिकम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, इसलिए फर्स्ट में लिखेंगे ट्रू। अब देखो सेकंड क्या है, व्हाट इज गिवन? हिज मदर हियर्स हिम। तो मंकी जो है उसको किसने सुना था? मदर ने? नो, उसकी मम्मा ने नहीं सुना था, वाइज वुमन ने सुना था, राइट? सो यहाँ पे क्या राइट है या फॉल्स है? इट इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? उसकी मदर ने सुना था, बट इट्स नॉट ट्रू। किसने सुना था? वाइज वुमन ने। अब देखो नेक्स्ट, अ वाइज वुमन गिव्स हिम अ मैजिक बैंड। यस, किसने दी थी? वाइज वुमन ने। तो थर्ड वन में हम वापस लिखेंगे ट्रू। ओके, नाउ फोर्थ नंबर, द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग लेग्स। तो जिराफ क्या स्ट्रेच करता है? लॉन्ग लेग्स या फिर नेक? नेक, राइट? यहाँ पे हमने नेक पढ़ा है और इसमें क्या दिया है? लेग्स। तो हम क्या करेंगे? फॉल्स। नाउ फाइव नंबर, द एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक विद वाटर। सो yes or no? Yes, the elephant fills his trunk with water. So 5 number is again true. Now next is 6 number. The zebra has strips. Zebra की body पे strips थे. Yes, so again 6 number true. Now 7 number, the little monkey sees a monster in the river. तो जो monkey है उसने river में monster देखा था. Yes, okay. Yes, now see on the page 27 क्या दिया है? Rhyming words है. 5 words are given, you have to write 2 rhyming words for that. अब rhyming word लिखना है, लेकिन कैसे? जो M से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट दिया है मैजिक, यहाँ अंडरलाइन दिया है, देखो दिस इट इज गिवन इन अ पिंक कलर। तो जो फर्स्ट 2 दिए हुए हैं उसके साथ हम मैच करना है। देखो कैसे लिखना है, मैजिशियन, देन यू हैव टू राइट हियर मैगी, बिकॉज यहाँ पे भी एम से स्टार्ट होना चाहिए और ये जो 2 वर्ड्स हम लिख रहे हैं वो भी एम से स्टार्ट होना चाहिए। अब है जूम, तो जेड से स्टार्ट करना है हमको वर्ड। ओके, वी हैव टू राइट विद जेड। सो जू एंड जिप। ओके, नेक्स्ट इज जोकर। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? जे से। ओके, सो जॉय एंड JAR, जार। अगेन जे से स्टार्ट हो गया। अब 4 नंबर गम है, तो GIRL, गर्ल, और फिर क्या है? गर्ल और क्या लिख सकते हैं हम? ग्रेप्स, राइट? जी से स्टार्ट हुआ। यस, फिर है स्पून, तो S और P
magician, Maggie. Zoom, zoo, zip. Joker, joy, Jan. Gum, girl, grapes. Spoon, spot and spell. समझ में आया? Okay, so we have completed up till page number 27. So we will meet in our next lecture. Till that, bye bye.